Hello everyone, hope you all are fine and doing your studies well. Today we are going to discuss some more journal entries related to bad debts, banking transactions and compound journal entries. Yes student, first of all I am discussing today compound journal entries. When two or more transactions relating to one account means it can be the real account, it can be the personal account, or it can be the nominal account, take place on the same date. At that time, instead of passing separate entries for all such transaction, one journal entry is passed, and such a journal entry is termed as a compound journal entry. For example, 31st March को a trader has paid some of the amount for the salary, some of the amount for the rent, as well as some of the amount for the wages. So all these three accounts, you can see these three accounts are related to the nominal account. Yes, तो यहाँ पे जब टू और मोर ट्रांजेक्शन, these are the separate transactions but it has taken place on the same date, that is 31st March, and these are related to the single account. So instead of passing three journal entries, we can pass a single journal entry also, and these type of journal entry is known as compound journal entry. In compound journal entry, there can be more than one account debited or more than one account is credited. So in this one transaction, because these all three are related to the nominal account, and our nominal account rule says debit all the expenses. So these expenses we have debited, and these expenses have been paid through cash or against cash. This is the reason we have credited the cash account, because this is a real account and what goes out should be credited. So this type of journal entry is known as compound journal entry. Yes students, now I am going to discuss with you some of the banking transactions. In this regard, number one is cash deposited into bank. So first of all, we have analyzed two accounts, that is cash and bank. So here cash represents the real account and bank is the personal account. Yes, so what is the rule of the personal account? That debit the receiver. बैंक इज द रिसीवर, बिकॉज बैंक में आपने डिपॉजिट कराया कैश, तो बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट शुड बी credited. The next is cash withdrawn from bank. Now here again the two accounts are cash and bank, but in this one, when you are withdrawing cash, what comes in the business, that is cash, and what comes in should be debited. So cash account is debited. Again, bank is a personal account and bank here is becoming the giver. So giver को हम क्या करते हैं, credit. This is the reason यहाँ हमने लिखा है to bank account. Now the next transaction is check received from any customer. किसी कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है and it has been deposited into the bank on the same day. जैसे ही आपके पास चेक आया, सेम डे आपने डिपॉजिट करा दिया. सो अगेन you just see one of the account is bank. Now here again the bank is the receiver, so bank account will be debited. And who is the giver here? The customer. Customer is the giver because same day आपने डिपॉजिट करवा दिया है. So this is the reason the customer personal account will be credited. Now the next transaction is when check are received and not sent to the bank on the same day. In this one transaction we have deposited the check on the same day, but here sometime it happens that we are getting the check for the date or not on the same day. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, उस चेक को अपने पास रखते हैं टिल द टाइम द सेम डेट
comes, okay, to be deposited. तो अब इस केस में what comes in the business, what you have to debit, that is check. Check is coming in the business, so check account we will debit. And यहाँ पे चेक आर रिसीव्ड, पर बैंक को हमने दिया नहीं है, तो बैंक का तो यहाँ ना रिसीवर है ना गिवर है. सो चेक हमने किससे रिसीव किया है, हु इज़ द गिवर, वो अगेन इट कैन बी एनी कस्टमर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इस केस में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. कोई भी कस्टमर का पर्सनल नेम हो सकता है. जब चेक आप सेम डे पे डिपॉजिट कराते हो तो बैंक रिसीवर बन जाता है. बट व्हेन यू आर रिसीविंग द चेक एंड यू आर नॉट डिपॉजिटिंग इट ऑन द सेम डे, तो आपने क्या करना है, व्हाट कम्स इन शुड be debited, that is check in hand account debit, and the again customer is the giver, so it will be credited. Yes bete, when above received check deposited into bank, जब आपने चेक रिसीव किया एंड द सेम डेट यू आर नॉट डिपॉजिटिंग, सो वी हैव डेबिटेड check in hand account debit to customer name. Up the above check which we received earlier, now we are going to deposit into the bank, so here again the bank is becoming the receiver and receiver should be debited. And यहाँ पे what goes out from the business, that is check in hand. अब आपके पास से क्या जा रहा है, check in hand, so what goes out should be credited. So here when the received check has been deposited into bank later, at that time the journal entry will be bank account debit to check in hand account. The next is when a customer directly deposit check into bank, customer बैंक में जाके deposit कर देता है, at that time also the bank is the receiver, so bank account will be debited. And who is the giver, customer personal account, so customer account will be credited. This is the receiver, that's why we have debited, and customer is the giver, so customer personal account will be credited here. When a check previously deposited into bank dishonor, किसी भी रीज़न से अगर बैंक में जो आपने चेक डिपॉजिट करवाया है वो डिसऑनर हो जाता है, तो क्या होता है, जब कस्टमर बैंक में डिपॉजिट कराता है तो बैंक रिसीवर है एंड कस्टमर गिवर है. लेकिन अब वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे वो डिसऑनर हो गया, चेक सेम चेक, तो अब कौन रिसीवर हो जाएगा, दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड. वाई, क्योंकि कस्टमर अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कस्टमर विल बिकम अगेन द रिसीवर because he has deposited, so he will be getting it back, and bank will be giver here, so bank account will be credited. Now when a check received from a customer and discount is allowed, as I told you earlier also, cash discount is allowed at the time of cash payment. Yes, तो आपको एक चेक रिसीव हो रहा है एक कस्टमर से एंड डिस्काउंट आप उसे अलाउ कर रहे हैं, तो अलाउड जब डिस्काउंट होता है इट बिकम्स द एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड अलॉन्ग विद द बैंक. क्योंकि आपने क्या किया है, बैंक में वो चेक फिर से डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक यहाँ क्या बन गया है, अगेन रिसीवर, सो रिसीवर शुड बी डेबिटेड. और कैश और बैंक के साथ में ही डिस्काउंट की एंट्री आती है. अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू, बिकॉज दिस इज़ अ कैश डिस्काउंट एंड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट or at the time of making the payment this discount is given. So यहाँ पे discount allowed भी क्या होगा, debit होगा. अब बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. अब आप ये डिस्काउंट किसको दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, सो कस्टमर पर्सनल अकाउंट. इज दिस क्लियर? ये कस्टमर आप क्या कर रहे हैं, इससे आपने क्या, ये गिवर बन गया है. क्यों बन गया है, इसने हमें क्या किया है, हमें चेक दिया है, तो ही इज़ द गिवर. इज दिस क्लियर? नाउ इन अबव केस, नाउ द सेम ट्रांजेक्शन विच वी वर डूइंग हियर, हमने क्या किया है, इनको डिस्काउंट अलाउड किया है अलॉन्ग विद द
payment or you can say that receipt of the payment we have got. So अगर यही चेक फिर से डिसऑनर हो गया सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, यही कस्टमर क्या बनेगा, फिर से रिसीवर बनेगा, बैंक गिवर बनेगा. लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्काउंट, बिकॉज ये डिस्काउंट तो अलाउड हमने कब किया था, जब हमारे पास पेमेंट आ रही थी. तो अब ये डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो इन दिस वन केस दिस एंट्री विल बी reversed. So customer personal account will be debited. Who is the giver? Bank account. And the discount we have to reverse. So here discount allowed account. So आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्काउंट अलाउड तो हमेशा डेबिट होता है. यस, यू आर करेक्ट, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है. बट इस केस में क्या हुआ है कि ये डिस्काउंट अलाउ रिवर्स किया है. क्यों किया है, क्योंकि जब हमारे पास पेमेंट आई ही नहीं है तो हम उसे डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं. दिस इज़ द रीज़न सेम एंट्री वी हैव रिवर्स्ड एंड हियर ये क्या हो गया है, हमारा क्रेडिट हो गया है. नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हेन एनी एक्सपेंस इज़ पेड बाय इशूइंग द चेक. सो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं. सो एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिट एंड हु इज़ द गिवर, बैंक. So expense account debit to bank account, like salary account debit, telephone expenses account debit, electricity bill account debit to bank account. When cash is withdrawn from the bank for personal use. अब अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं, वेदर फ्रॉम द बैंक और वेदर फ्रॉम द बिजनेस, इट इज़ टर्म्ड एज ड्राइंग. और ड्राइंग क्या है, इट इज़ द पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर. तो यहाँ पे प्रोप्राइटर क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है, और उसका नाम क्या है, ड्राइंग है. तो ड्राइंग अकाउंट इज़ डेबिट. हु इज़ द गिवर, बैंक. सो बैंक इज़ द गिवर. दिस इज़ द रीज़न वी हैव क्रेडिटेड द बैंक अकाउंट. सो जर्नल एंट्री इज़ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. नाउ व्हेन इंटरेस्ट इज़ चार्ज्ड बाय द बैंक, चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, अगर आपने मोर मनी विड्रॉ कर लिए बैंक से, तो एट दैट टाइम बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है. बैंक जब चार्ज कर रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाता है बेटा, इट बिकम्स द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. ठीक है, तो इस केस में आप इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे. और हु इज़ द गिवर हियर, बैंक इज़ ओनली द गिवर. अब आप सोचेंगे बैंक तो चार्ज कर रहा है, तो बैंक ही कैसे गिवर हो गया. एक्चुअली बैंक गिवर इसलिए बन जाता है क्योंकि बैंक आपके अकाउंट से मनी क्या करेगा, अमाउंट क्या करेगा, सेम विड्रॉ कर लेगा. तो आपका अकाउंट क्या बन जाएगा, गिवर बन जाएगा. दिस इज़ द रीज़न हियर बैंक अकाउंट इज़ credited. When interest is allowed by the bank, now your money has been kept in the account. ओके, सो फॉर द सेम द बिजनेस क्या करता है, अलाउ करता है इंटरेस्ट. एज यू हैव सीन मैनी टाइम्स यू आर गेटिंग द मैसेज फ्रॉम द बैंक दैट इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट दिया गया है. एट दैट टाइम इंटरेस्ट हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारी इनकम बन जाती है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. अब बैंक आपको कैश में पेमेंट तो देगा नहीं, बैंक क्या करता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है. तो हु इज़ द रिसीवर हियर, बैंक ओनली. सो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड यहाँ इंटरेस्ट क्या है, हमारी इनकम. तो यहाँ इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. इज दिस क्लियर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. जब बैंक से आप ओवरड्राफ्ट कर लेंगे या मोर मनी विड्रॉ कर लेंगे, तो एट दैट टाइम उस मोर मनी जो आपने विड्रॉ की है, बैंक उस पर इंटरेस्ट क्या करता है, चार्ज करता है. चार्ज करता है, इट बिकम्स द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. और जब आपने मनी बैंक में डिपॉजिट करके रखी हुई है, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट अलाउ करता है, आपको देता है. एट दैट टाइम दिस बिकम्स द इनकम फॉर द बिजनेस. सो ये क्या बन जाता है, आपकी इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा. अब व्हेन बैंक चार्जेस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक सम ऑफ द चार्जेस, तो ये जो सर्विस चार्जेस बैंक लेता है, नेचुरली अगेन इट इज़ द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस.
तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Here you just always keep in mind बच्चे that बैंक जब भी चाहे चार्जेस करे, चाहे इंटरेस्ट अलाउ करे या इंटरेस्ट आपको चार्ज करे, इन ईच केस बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट कर देता है और आपके अकाउंट से ही क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है. तो यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक ही ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट क्यों होगा, because it has been credited or debited from your account only. This is the reason here bank account is debited and credited. Now we talk about the bad debts. अब बैड डेट्स हमने वैसे तो अकाउंटिंग टर्म जब किया था एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव मेड यू क्लियर, बट अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. बैड डेट्स क्या है बेटा, बैड डेट्स है द अमाउंट विच इज़ इररिकवरेबल, the amount which is irrecoverable. इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीज़न. दैट अमाउंट इज टर्म्ड एज बैड डेट्स. यानी कि आप कह सकते हैं जो अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने किसी भी डेटर से, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ द गुड्स हैव बीन सोल्ड टू श्याम फॉर 10,000 एंड लेटर ही बिकेम द इंसॉल्वेंट, सो ही इज़ अनेबल टू पे अस मनी. यस, तो गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर ₹10,000. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम इज़ द रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट. यस, तो हमने गुड्स श्याम को सेल की है कितने की, 10,000 की, and later he is unable to pay the amount due to insolvency. तो वो कहता है कि मैं ऑफिशियल जो इसका रिसीवर है, ऑफिशियल जो पर्सन है, वो हमें कितने पैसे दे रहा है, ही इज़ गिविंग ओनली 25 पैसे इन अ रुपी. 25 पैसे इन अ रुपी. 25 पैसे इन अ रुपी का मतलब क्या होता है बेटा, 25% हमें क्या कर रहा है, इसका ऑफिशियल पर्सन हमें 25 पैसे दे रहा है. सो व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस शुड बी डेबिटेड. सो कैश अकाउंट डेबिट, उसने कितने पैसे दिए हमें, 25 पैसे इन अ रुपी मीन्स 25%. तो 10,000 आपने लेने थे, सो वी हैव गॉट 10,000 इंटू 25%, 2,500. यस, तो अब जो पैसे हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, बैड डेट्स. और बैड डेट्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए, इट इज़ अ लॉस. तो लॉस को हम क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट करते हैं. सो 7,500 इज़ द बैड डेट्स. नाउ टू श्याम अकाउंट. सो श्याम से हमने कितने पैसे लेने थे, 10,000. इट वॉज डेबिटेड एट दैट टाइम बाय 10,000. नाउ हिज अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड बाय क्रेडिटिंग द सेम अमाउंट, दैट इज़ 10,000. सो बैड डेट्स क्या है बेटा, द अमाउंट विच वी हैव टू टेक ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल फ्रॉम एनी कस्टमर एंड लेटर ही finds the problem to pay the same. At that time, that person or the customer becomes the bad debts for us. Bad debtor हो गए वो, ठीक है. So whatever the amount you are receiving, that will be cash or bank account debit, and what you are not receiving, that will be debited because it is a loss for the business. Now one thing more, now this amount has been shown or you can say written off like a bad debt. Now in future, suppose this Sham pays us like 5,000
from this irrecoverable amount. So at that time suppose शाम हमें यही इसमें से 7500 में से 5000 पे कर देता है, तो what comes in the business should be debited, that is cash account debit 5000 to ये क्या थे, बैड डेट्स थे जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ थे प्रीवियसली, अब वो क्या हो रहे हैं, हमें रिकवर हो रहे हैं। इसमें से 7500 में से अभी हमें कितना रिकवर हो रहा है, 5000, सो इट विल बी रिटर्न टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये अब हमने क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, और गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। I think this is also clear to all of you. Yes beta, I think this video is beneficial for you, and these entries you just go through again and again so that you can learn these entries by heart. Thank you very much. God bless you all.